Hi students, welcome once again in this series where we are discussing chapter tissues for class 9. We have already discussed about plant tissues. We were discussing about animal tissues. Epithelial tissue, connective tissue part has been completed. And now we are going to discuss about muscular tissue and nervous tissue in this part of the video. And this is the last part of the video as the explanation of the chapter up to the nervous tissue is there. And today in this video, we will focus mainly on muscular tissue and nervous tissue. So let's start discussing about muscular tissue. We know that there are 4 types of animal tissues: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. We are going to discuss about muscular tissue, and you should know one thing, that this tissue is responsible for movement and locomotion in animals. And this tissue is responsible for movement and locomotion because it has the spatial ability of contraction and relaxation. This tissue can contract and relax, and that contraction and relaxation help in the movement and locomotion of animal body. So about this tissue, the contractile tissue, this tissue is contractile because it can contract, the cells, the fibers can contract. So the contractile tissues are made up of muscle cells. You can see here, these are muscle cells, which are elongated and large sized. So what is the nature, what is the characteristics of muscle cells? They are contractile and they are elongated, large sized, and thereby they are also called muscle fiber or muscular fiber. These tissues help in various type of movements of body parts and locomotion. So movement and locomotion both are because of muscular tissue. You can move your finger, move your hand, you can move from one place to another because of muscular tissue. And the movement of internal organs, जैसे आपका heart beat कर रहा है, there is a kind of movement called peristalsis in alimentary canal, which is responsible for the passage of food through the alimentary canal. These are caused by muscular tissue. Okay, so muscular tissue is responsible for your movement of body parts, then locomotion, movement of internal organs like heartbeat, all are because of muscular tissues. Now, why these tissues, the cells of these tissues have the ability to contract and relax? The muscles or their cells contain special protein called contractile proteins. And because of the presence of these proteins, muscles can contract and relax to cause movement. So the spatial protein which is responsible for contraction and relaxation. The spatial protein which is responsible for contraction and relaxation is contractile protein, which is present in the muscle cells responsible for movement. There are 2 main types of muscles we can say in our body. Some work according to our will and some other do not. Muscles which can move under our will are voluntary muscles, like muscles of your hand, muscles of the leg, muscles of your finger. So most of them are voluntary muscles. These muscles move under your will. Muscles which do not move under our will are called involuntary muscles, like muscles in the intestine, muscles in the stomach, like muscles which are present in blood vessels, like muscles in the heart, which is responsible for contraction and relaxation. All these muscles which do not move under our will are called involuntary muscles. Okay, so muscles which can move under our will are called voluntary muscles, and muscles which do not move under our will are called involuntary muscles. अब क्लासिफिकेशन का बात करते हैं, कितना टाइप का है? ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन. There are 3 types of muscular tissue. They are striated, unstriated, and cardiac muscle.
और एक एक करके हम लोग तीनों मसल्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन स्ट्राइटेड, सेकेंड वन अनस्ट्राइटेड, थर्ड वन कार्डियक मसल। तो यहाँ पे स्ट्राइटेड को स्केलेटल मसल भी बोला जाता है, देन अनस्ट्राइटेड को स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है, एंड देयर इज अनदर टाइप कार्डियक मसल। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये टिश्यू आपका बॉडी का कौन सा पार्ट में मिलेगा। दिस कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? इफ आई आस्क यू, द ऑर्गन इज द हार्ट। सो जो टिश्यू हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट वन इज कार्डियक टिश्यू। तो एक एक करके हम लोग तीनों टिश्यू के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी। सो फर्स्ट अबाउट striated or skeletal or voluntary muscles. Striated or skeletal or voluntary muscles, यहाँ पे striated बोलने का रीजन क्या है? उनका जो सेल्स है, फाइबर्स है, उनमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसलिए इनको striated, ये कुछ स्ट्राइप्स जैसा दिखाई देता है। Skeletal because they are attached to bones. Voluntary because they work according to our will, they move according to our will. So striated or skeletal or voluntary muscles, they are attached to bones and help in body movement, and so they are called skeletal muscles. Thereby they are called what? Skeletal muscles. The striated muscle cells are long or elongated. Cells कैसा है आप देख सकते हो, elongated, cylindrical in shape. You can see this, long, unbranched, multinucleated. एक एक सेल में न्यूक्लियस देखो आप, many nuclei are there. So striated और skeletal और voluntary muscles का जो cells है कैसा है? Long, elongated, cylindrical, unbranched and multinucleated. These muscles provide the force of locomotion to all other voluntary movements of the body. तो ये मसल्स का काम क्या है? ये वो फोर्स जनरेट करेगा जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ये वो फोर्स जनरेट करेगा जो आपका बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट में हेल्प करेगा। Since the entire muscle fiber show alternate dark and light bands or stripes or striations, they are called striped muscles. तो इन मसल फाइबर को जब देखा जाता है माइक्रोस्कोप में, तो आप देखोगे कि इनमें लाइट एंड डार्क ऐसा पैटर्न दिखाई देगा, और इसी की वजह से इनको स्ट्राइप्ड मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है। These muscles work according to our will, so they are voluntary muscles. The nuclei are peripheral in position. मतलब ये अगर मसल फाइबर है तो न्यूक्लियस जो है वो सरफेस के तरफ होगा, सेंटर के तरफ नहीं होगा, तो इसी को बोला जाता है पेरिफेरल न्यूक्लियाई। ओके, सो हम लोगों ने कौन सा मसल के बारे में डिस्कशन किया अभी? वो है स्ट्राइटेड और स्केलेटल और वॉलंटरी मसल। तो इस मसल को स्केलेटल मसल क्यों बोला जाता है? बिकॉज दीज मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स। स्ट्राइटेड या स्ट्राइप क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑन इट्स फाइबर। So what are the three types of muscular tissue? First one striated, second one unstriated, and third one is cardiac. अब ये striated muscles कहाँ मिलेगा आपका बॉडी में? They are found in the muscles of the limbs. आपका हाथ और पैर का जो मेन मसल्स है, they are striated muscles. बॉडी वॉल में striated muscle, फेस में, नेक में striated muscles. And these muscles work according to our will. अब अगर बात करते हैं हम लोग unstriated और smooth और involuntary muscles, they occur as bundles or sheets of elongated spindle-shaped cells or fibers with a single centrally located cigar-shaped nucleus in the center of the cytoplasm, which is also called सार्कोप्लाज्मा। बहुत लंबा सेंटेंस है, पहले इस पार्ट को समझ लेते हैं हम लोग। दे ऑकर इज बंडल, तो ये जो सेल्स होगा वो ग्रुप में दिखाई देगा, तो बंडल का फॉर्म में होगा।
और शीट्स ऑफ इलोंगेटेड स्पिंडल शेप सेल्स, या फिर सेल्स कैसा होगा, स्पिंडल शेप फ्लैट सेल्स होगा थोड़ा। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सेल्स इधर दिखाई दे रहा है, दे आर स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप यहाँ पे थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एजेस। So they occur as bundles or sheets of elongated spindle shaped cells or fibers with a single centrally located cigar shaped nucleus। इनका जो फाइबर है वो सिंगल सेल वाला है और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस, वो भी शेप कैसा, सिगार शेप्ड। ओके, कहाँ पे लोकेटेड है, पहले वाला में हम लोगों ने डिस्कस किया पेरिफेरल में है, अभी सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म जिसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्मा। And contractile threads called myofibrils which run longitudinally through the cell। तो मायोफाइब्रिल आप देख सकते हो कि सेल के अंदर से ये लॉन्गिट्यूडनली ये फाइबर्स दे आर रनिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल। और ये जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। सो यहाँ पे एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, दे ऑकर एज बंडल। वैसे मसल फाइबर दे मोस्टली ऑकर एज बंडल या फिर शीट्स ऑफ इलोंगेटेड स्पिंडल शेप सेल्स और फाइबर्स। तो यहाँ पे सेल जो है उसमें न्यूक्लियस एक ही है, न्यूक्लियस का शेप है सिगार शेप्ड और वो साइटोप्लाज्म का सेंटर में है। साइटोप्लाज्म के लिए क्या टर्म है, सार्कोप्लाज्मा। And contractile threads called myofibrils which run longitudinally through the cell। Since the fibrils do not bear bands or striations, in fibers में वैसा band और striations या alternate light and dark bands stripes ऐसा कुछ नहीं है, thereby they are called unstriated muscles, they are also called smooth muscles। These muscles do not work according to our will, so they are involuntary muscles। Smooth or involuntary muscles control the movement of food in the alimentary canal। तो आपका बॉडी में एलिमेंट्री कैनल में जो फूड होता है इंटेस्टाइन में, स्टमक में, वो धीरे धीरे पास होते रहता है बिकॉज ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उस मूवमेंट को पेरिस्टल्सिस बोला जाता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड व्हाट, peristalsis। Okay, so smooth or involuntary muscles control the movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels। They are also found in the iris of the eye। आपका जो आई है, आई का जो कलर्ड पोर्शन है सामने से जो देखते हो आप, वो एक मसल है और इस मसल को बोला जाता है आइरिस। और उसके बीच में एक छोटा सा होल होता है, अगर आप ठीक से देखो ये आइरिस है और यहाँ जो होल है इसको बोला जाता है प्यूपिल। These muscles are also found in the uterus and in the bronchi of the lungs। आपका जो विंड पाइप है ट्रैकिया, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है and enter into both the lungs। और उस एक ब्रांच को ब्रोंकस बोलते हैं लेकिन प्लूरल में ब्रोंकाई। ओके, और वो भी कौन सा मसल है उसमें, इट इज अनस्ट्राइटेड और स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनस्ट्राइटेड और स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल। यहाँ पे स्पेशल बात है कि एक सेल में एक न्यूक्लियस भी सेंट्रली लोकेटेड, फाइबर या सेल में ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं है। Okay, and they are involuntary muscles, it is more important, they are involuntary muscles। अब हम लोग बात कर सकते हैं about cardiac muscle। This cardiac word is related to the heart। This type of muscle tissues are present in the muscles of the heart and are responsible and are composed of, responsible for what, contraction and relaxation, and are composed of branched cylindrical and uninucleated cells। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ जो ये सेल है ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन ये दूसरा सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है और सेल्स ब्रांच्ड भी हो सकता है। आप देखो इधर ये एक सेल इधर दिखाई दे रहा होगा आपको और इसका एक ब्रांच इधर दिखाई दे रहा है।
इस सेल का भी ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, एंड देयर इज अनदर ब्रांच, और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड. The cardiac muscles show rhythmic contraction and relaxation of the heart and help to pump and distribute blood to the various parts of the body. तो हार्ट का फंक्शन क्या है? What is the function of heart? Function of heart is to pump the blood to the different parts of the body. और इस पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मसल है, उस मसल को हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल. कार्डियक मसल्स का सेल्स ब्रांच्ड होता है, सिलिंड्रिकल है, एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड. दे आर व्हाट? यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस. तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक अबाउट कार्डियक मसल, टाइप्स ऑफ मसल्स वी कैन से. हम लोगों ने बात किया फर्स्ट अबाउट स्ट्राइप्ड मसल्स, देन अनस्ट्राइप्ड मसल्स, एंड आफ्टर दैट कार्डियक मसल. अगर आपको पूछा जाए कार्डियक मसल वॉलेंटरी मसल है या फिर इनवॉलेंटरी मसल, तो इसका सिंपल आंसर है इट इज व्हाट? इनवॉलेंटरी मसल. ये आपका विल से काम नहीं करेगा, आपका कंट्रोल में नहीं है. So we discussed about muscular tissue, and now we are going to discuss about nervous tissue. Now we can discuss about nervous tissue. There are 4 types of animal tissue. First one is epithelial tissue, then connective tissue, then muscular tissue, about which we have just discussed, and now we are going to discuss about nervous tissue. अब ये टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? ये टिश्यू का मेन फंक्शन है कि आपका बॉडी को कंट्रोल, या आपका बॉडी में जितना भी एक्टिविटीज हो रहा है उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू. ओके, कंट्रोल करना मतलब फॉर एग्जांपल आपका हार्ट को किस रेट से पंप होना चाहिए. आप अगर भाग रहे हो तो उस केस में आपका हार्ट का पंपिंग बढ़ना होगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू. जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो वापस वो नॉर्मलाइज होना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू. फिर आपका बॉडी में आपने फूड कंज्यूम किया, किस टाइम पे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होना है, कब फूड एब्जॉर्ब होना है. सो ये सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए, इन सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इन योर बॉडी देयर इज व्हाट? नर्वस टिश्यू. और इस टिश्यू का जो सेल्स है वो स्पेशली डिजाइंड इस काम के लिए. ओके, द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड. ये सेल स्टिमुलेट होने के लिए डिजाइंड है. स्टिमुलेट होना मतलब स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और उस चेंज को अगर रिसीव कर सकता है कोई सेल, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट सेल हैज द एबिलिटी टू गेट स्टिमुलेटेड. ओके, सो आपका एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठंडा लग रहा है, वो सब कौन रिसीव करता है वो इंफॉर्मेशन? दीज सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज. The cells of nervous tissues are highly specialized for being stimulated. मैंने आपको stimulus word का मतलब बताया है. What is stimulus? Any change in the environment of an organism, और उसके against भी body react भी करता है. For example, आप रूम में बैठे हो, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, then there एक response is sweating. So temperature बढ़ना is stimulus and reaction by your body is response. Okay. So the cells of the nervous tissues are specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. So stimulate होना, फिर उस stimulation को transfer करना. For example, light enters into your eyes. Light आपका आई में एंटर होने के बाद एक स्क्रीन पे फॉल करता है, उस स्क्रीन का नाम है रेटिना. रेटिना का जो सेल्स है दे गेट स्टिमुलेटेड, और वहां पे एक सिग्नल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल, और वो सिग्नल बाद में पहुंचता है ब्रेन तक. देन वी कैन हैव द सेंसेशन ऑफ विजन. ओके, so the cells of nervous tissues are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. The brain, spinal cord, nerves are all composed of nervous tissue. Okay, so brain में nervous tissue, spinal cord में nervous tissue, और आपका body में जितना भी nerves,
जो क्या करता है nerves carry what signals, electrical impulses from one part of your body to another. They are also composed of nervous tissue, and the cells of this tissue are called nerve cells or neurons. So what are neurons? Neurons, nerve cell ka another term, and neurons are the structural and functional unit of nervous tissue. Each neuron has three part, the cyton और सेल बॉडी आप देख सकते हो यहाँ पे, न्यूक्लियस जो है और उसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक साथ बोला जाता है सेल बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड साइटोन. देन डेंड्राइट्स आप देख सकते हो कि साइटोन में जो शॉर्ट ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एंड दे आर व्हाट डेंड्राइट्स. वन इज कॉल्ड डेंड्रॉन एंड एक्सॉन. देयर इज अ लॉन्ग एक्सॉन, दिस वन. एक नर्व सेल में डेंड्राइट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन देयर इज ओनली वन एक्सॉन. तो आप देख सकते हैं ब्रेन इज देयर, स्पाइनल कॉर्ड इज देयर, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे फाइबर्स निकला हुआ रहता है. दैट फाइबर्स कम्युनिकेट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इनको हम लोग बोलते हैं नर्व फाइबर्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, नर्व फाइबर्स और नर्व्स. सो हम लोगों को पता है कि ये जो नर्वस टिश्यू है वो टिश्यू कौन सा सेल से बना हुआ. नर्वस टिश्यूज आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, आल्सो कॉल्ड नर्व सेल. सो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज नर्व सेल, नर्व सेल और न्यूरॉन इज एन इलोंगेटेड ब्रांच्ड सेल. इलोंगेटेड भी है, ब्रांच्ड भी है, एंड दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. आप सिंपल में ऐसे भी बोल सकते हो कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस. इंपल्सेस क्या, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, मतलब मैसेज बोल लो आप. तो ये मैसेजेस जो है बॉडी का एक पार्ट से दूसरा पार्ट तक कैरी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स. तो अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन. स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन. नर्व सेल और न्यूरॉन, इसका पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने तीन पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेम क्या है, साइटोन, डेंड्राइट, एक्सॉन. Cyton, it is the cell body of the nerve cell that has a large central nucleus in cytoplasm. आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियस ये रहा, साइटोप्लाज्म ये है, which from which long thin hair like parts arise. और वो long मतलब short hair like भी है, branched भी है, इनको dendrites बोलेंगे, और single long one is called what, axon. What are dendrites? The short branched fiber of neuron which receives nerve impulses. मतलब एक nerve cell में जो nerve impulse यानी signal receive होता है कौन सा साइड से, डेंड्रॉन साइड से, डेंड्राइट साइड से, और वो बाहर कैसे जाता है, from axon side. So dendrite, the short branched fiber of neuron which receives nerve impulses. An axon, it is a single long conducting fiber. को अलग से देखना, a single long conducting fibers extending from the neuron that transmit impulses away from the cell body. So ऐसा कौन सा nerve cell का part है जो signal को towards the cell body लेके आएगा, it is dendrite. और ऐसा कौन सा nerve cell का part है जो signal यानी impulses यानी electrochemical signals को nerve cell से दूर ले जाएगा, it is axon. तो एंट्री होता है डेंड्राइट से और एग्जिट होता है एक्सॉन से. Dendrons carry nerve impulses towards the cyton, whereas axon carries impulses away from the cyton. So अगर parts के बारे में बोला जाए तो what are the important parts of nerve cell? Cyton, dendrite, axon. और यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो ये है नर्व एंडिंग या एक्सॉन एंडिंग बोला जाता है, यहाँ जो ब्रांचेस दिखाई दे रहा है. और आप देख सकते हो एक्सॉन के ऊपर एक कवर जैसा दिखाई दे रहा होगा, और ये कवर एक प्रोटीन का कवर होता है जिसको माइलिन शीथ बोला जाता है, which acts as insulator. Which acts as what?
इंसुलेटर, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग होता है इंसुलेशन, वैसा ही यहाँ पे प्रोटीन का लेयर होता है, दैट लेयर इज कॉल्ड माइलिन शीथ। नाउ व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स क्या होता है कि ये जो नर्व सेल्स है, बहुत नर्व सेल्स मिलके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके नर्व सिग्नल्स को या इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो एक अकेला नर्व सेल ऐसा नहीं कर सकता, देयर इज कनेक्शन ऑफ मेनी नर्व सेल्स, लेकिन ये नर्व सेल्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये जो जंक्शन होता है दो नर्व सेल का, इस जंक्शन को बोला जाता है साइनेप्स। आप यहां भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हैं। सो इट इज द जंक्शन ऑफ द रीजन ऑफ द यूनियन ऑफ axon of one neuron with the dendrite of another through which nerve impulses are transferred. So दो नर्व सेल का जंक्शन, जहां से एक नर्व सेल से सिग्नल दूसरा नर्व सेल में जाएगा, इंपल्सेस दूसरा नर्व सेल में जाएगा, दैट जंक्शन इज कॉल्ड व्हाट? साइनेप्स। So it is the junction or functional gap or the region जहां पे दो नर्व सेल्स का यूनियन होगा, यूनियन फॉरवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। Functions of nervous tissue. Nervous tissues control all the body activities and it coordinates among the various body parts during any body function by transmission of nerve impulses. So ये टिश्यू क्या करेगा? आपका कंट्रोल कर रहा बॉडी एक्टिविटीज को। मैंने आपको कंट्रोल के बारे में समझाया था कि कब फॉर एग्जांपल आपने फूड इंजेस्ट किया, कितना एसिड स्टमक में रिलीज होना है, कम होना है, ज्यादा होना है, that is controlled by nervous tissue. Then it coordinates among the various body parts during any body function. आप भाग रहे हो तो आपका हार्ट बीट भी हो रहा है, आपका लंग्स आपका एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प कर रहा है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को फ्लो करवा रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये इतना एक्टिविटीज आपका बॉडी में जो एक साथ हो रहा है, इसको कोऑर्डिनेट करवाने का काम भी नर्वस टिश्यू का है। ओके, कैसे? बाय ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, और आपको क्लास 10 में मिलेगा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, देयर वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा। Axon, it is always single in number in a nerve cell. एक nerve cell में एक ही axon. And there are many dendrons in a nerve cell. Okay? एक nerve cell में dendrites बहुत होते हैं, लेकिन axon एक ही। Axon, it is long dendron, small sized. Axon may or may not be branched. Dendrites, they are always branched. Axon, it conducts nerve impulses away from the cyton. Dendron or dendrites carry nerve impulses towards the cell body or cyton. One of the most important question जो इस पार्ट का है वो है draw a labeled diagram of nerve cell. आपको nerve cell का एक proper labeled diagram draw करना इस चैप्टर में कम से कम आपको आना चाहिए, और आप सिंपल में अगर ड्रॉ करना चाहो तो ये भी है, लेकिन आपको एक और थोड़ा ज्यादा लेबलिंग वाला डायग्राम आपको दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा उस डायग्राम को एट होम। सो वी हैव कंप्लीटेड डिस्कशन अबाउट एनिमल टिश्यूज, वी हैव कंप्लीटेड डिस्कशन अबाउट द होल चैप्टर द टिश्यूज फॉर क्लास 9। अब ड्यूटी आपका बनता है कि आपको ये चीज, ये मटेरियल से भी पढ़ना है, आपको वीडियो भी आप बार बार देख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एक बार में अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है आप अपना डाउट्स भी भेज सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ऐप, और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन आप होमवर्क जरूर सबमिट करना एंड यू शुड पार्टिसिपेट इन द मेंटी क्विज।